हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनएस इंग्लिश एकेडमी। दिस इज सोनिया गाइज। इन टुडेज वीडियो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ PYQs फ्रॉम द इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया विच इज़ द यूनिट 10 इन योर UGC नेट इंग्लिश सिलेबस। आई एम टेलिंग यू दिस यूनिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम this unit guys. You will get 4 or 5 question in your examination. If you really want to high score, so please you will have to practice all the PYQs by your own, right? चलिए मैं आपको पहले बता दूं कि इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया में हम कौन से वो टॉपिक्स हैं दैट वी स्टडी, राइट? सो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल में बेसिकली क्या इंट्रोडक्शन रहा है आपका इंग्लिश का? वी स्टडीज़ इन द हेल्प ऑफ लॉर्ड मैकॉले का मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, जो इनका 1835 में पब्लिश हुआ था, जिसमें ही टॉक्स और डिबेट अबाउट द एंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट है, वी स्टडी इन दिस यूनिट कॉलोनियल एजुकेशनल पॉलिसीज़, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं वुड डिस्पैच, जो आपके पेपर 1 में भी आता है 1854, एज वेल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ लाइक कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, राइट? Next we study impact on Indian languages and culture, right? In which we study English as a tool of empire. किस तरीके से जो English था एक tool बना empire का. As well Indian response to English studies means English used for resistance, जैसे कि राजा राव, गांधीज, critic, emergence of Indian writing in English, kinds of things we study in Indian response, कि क्या Indian response मिला है आपकी English studies को. As well guys, we study in this unit debates on curriculum and canon, right? और post independence developments आपको देखने मिल जाएगा, like Indian universities adopting English studies department, right? So these are the most relevant topics that we study in this particular unit 10 English studies in India. अभी मैं आप लोगों के साथ PYQs प्रैक्टिस करने वाली हूँ, for that you have an idea what kind of questions you will get in your examination, right? फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू रियली लाइक द कंटेंट आई डिस्कस टू यू ऑल, प्लीज़ लाइक द वीडियो. फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हु ऑथर्ड द मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन? अभी मैंने पीछे डिस्कस किया व्हेन आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट द टॉपिक्स कि ये जो आपका द मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन है 1835 बाय TB मैकॉले, राइट? सो दिस इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी. लेट्स मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड. द वुड डिस्पैच ऑफ 1854 इज नॉन एज, कि क्यों जाना जाता है? सो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज वी ऑल नो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन. ऑप्शन नंबर बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3. द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 अलाउ. सो आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर सी, क्रिश्चियन मिशनरी एजुकेशन, राइट? Question number 4 we have, who demanded English education in India during early 19th century? So answer we have Raja Ram Mohan Roy, right? Question number 5, in which year was the Hindu College, later President College, founded? So answer we have 1817, right? Next we have 3 universities, Calcutta, Bombay, Madras, were founded in 1857. So these are the question most relevant for your paper 1 also, because same question you will get in your paper 1 and second as well, right? चलिए, question number 7 we have, who founded Calcutta, Madras? So answer we have option number C, Warren Hastings. Question number 8, Sanskrit College in Banaras was founded in 1791, right? Question number 9, who wrote Raj Mohan's wife? So answer we have option number 3, Bankim Chandra Chatterjee. Question number 10, who established Fort William College? Answer we have option number B, Lord Wellesley. 11 question number, Fort William College was founded in 1800, right? 12 question, which act allow missionaries to education Indians? So of course we have the answer Charter Act, which was 1813, right? Question number 13, Hindu College was established in which city? So we have the answer Calcutta. Question number 14, first English school for Indians opened at Calcutta. And 15 question, Macaulay's goal was to create. Answer we have loyal clerks. 16 question, who promoted Western science via English education? So answer we have Raja Ram Mohan Roy.
And question number 17, who said Indian in blood, English in taste? So answer we have T.B. Macaulay. This question repeat many time in your examination, right? Let's move on. Question number 18, first major Indian poet in English, we have Henry Desrosiers. Henry Desrosiers, right? English formally introduced as medium of instruction in 1835, right? Foundation of modern Indian education is associated with Lord Bentinck. Let's move on. Next question number 21. In which document was it proposed that education should be conducted through the English language in India? So answer we have Macaulay's Minute, which came 1835. Option number C, the answer to this question. 22. Who said English education would create, किसने कहा, a class of persons Indian in blood and color but English in taste? Again we have T.P. Macaulay. देखिए this question repeat many time in your examination as well. In my list of this PYQs you see this question again repeat, okay, क्योंकि ये question आपका NFT है. Again and again आपसे examiner this question frame, okay. चलिए next question की ओर move करते हैं. 23 question we have, in which year did the University of Calcutta come into existence? So 1857. Next 24 question, the downward filtration theory was associated with. Answer we have option number B, Macaulay. 25, Anglicist supported education through. So answer of course Anglicist who talks about English, right? चलिए next we have Orientalist supported education through classical Indian language, like option C. Fort William College primarily focused on Indian language and administration, right? The answer. Question number 28 we have Hunter Commission 1882 was primarily related to. So it is related to primary and secondary education. Question number 29, which institution first promoted English education for Indians? Hindu College. Option A. Question number 30, which of the following writers belonged to the Young Bengal movement? So answer we have Henry Desrosiers, the first English poet, right? Question number 31, who advocate teaching Western sciences through the medium of English in India? So answer we have Raja Ram Mohan Roy, क्योंकि यही ऐसा चाहते थे कि जो आपका वेस्टर्न एडवोकेट इन द फेवर ऑफ, जो आपके राजा राम मोहन रॉय थे, ही वॉज इन द फेवर ऑफ advocate teaching Western science through the medium of English in India, right? Who called the father of English education in India? So answer we have William Bentinck, okay? Don't confuse while answering these questions, क्योंकि ये questions आपको simple लगते हैं but you never know which is the right answer. So you must have to practice twice or thrice at least before your examination these questions. ट्रस्ट मी, अगैन एंड अगैन आपसे यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इन डिफरेंट फॉर्मेट. समटाइम एग्जामिनर आस्क्ड इन कंसेप्चुअल बेस्ड, आपको 2 और 3 ऑप्शंस दे देते हैं एंड यू विल हैव टू सेलेक्ट ऑल. सो दीज आर दी टाइप जो आपसे पूछे जाते हैं, बट क्वेश्चंस आपके यही होते हैं. सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट, कीप इन योर माइंड एंड प्रैक्टिस एटलीस्ट ट्वाइस एंड थ्राइस. चलिए नेक्स्ट 33 क्वेश्चन वी हैव, which movement led to the demand for English education among India? So answer we have Bengal Renaissance, right? Question number 34, the minute on Indian education was part of, किसका part है ये? Of course this is the part of Orientalist Anglicist controversy, right? क्योंकि मैंने आपको इसमें बताया था, इसमें एक्चुअली एक डिबेट चला था एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट बिटवीन, डिबेट था, ठीक है, वर्सेस. ओरिएंटलिस्ट वांटेड टू, क्या चाहते हैं जो ओरिएंटलिस्ट हैं? दे वांट ऑप्शन बी प्रिजर्व एंड प्रमोट इंडियन नॉलेज सिस्टम. ये इंडियन नॉलेज सिस्टम को प्रमोट और कहीं ना कहीं प्रिजर्व करना चाहते थे. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, मैकॉले बिलीव्ड दैट इंडियन लिटरेचर वाज, वो क्या सोचते थे कि इन्फीरियर टू यूरोपियन लिटरेचर. ऐसा मानना था आपके मैकॉले का कि जो आपका इंडियन लिटरेचर है दैट इज इन्फेरियर टू यूरोपियन लिटरेचर, राइट? चलिए 37 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिएंटल कैंप? अभी ओरिएंटलिस्ट कैंप का कौन पार्ट नहीं है? सो वी हैव द आंसर चार्ल्स ग्रैंट.
अदरवाइज ये आपके विलियम जॉन्स, हेनरी थॉमस कॉलब्रुक एंड मॉनियर विलियम्स, दीज आर आपके पार्ट हैं ओरिएंटलिस्ट कैंप के। ओके 38 क्वेश्चन, वुड डिस्पैच वाज साइंड अंडर विच गवर्नर जनरल, किस गवर्नर जनरल के अंडर आपका साइन किया गया था वुड डिस्पैच? आई थिंक द नेम वी हैव ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। द पर्पस ऑफ वुड डिस्पैच वॉज टू, क्या जो वुड डिस्पैच था इसका पर्पस क्या था? तो पर्पस था आपका स्टार्ट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया, राइट। चलिए 40 क्वेश्चन नंबर, विच मूवमेंट हाईलाइट इन्फ्लुएंस the demand for western education in Bengal? So answer we have young Bengal movement, that was the option A. चलिए question number 41, first women to publish poetry in English in India, we have Toru Dutt, right? Next, in which language was Raja Ram Mohan Roy's Tofa ul Mujahideen written? ये जो इनका रॉय का आपका ये किस लैंग्वेज में लिखा गया था? सो आंसर भी है पर्सियन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 वी हैव, हु फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? सो आंसर भी है विलियम जॉन्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 44, विच लैंग्वेज वॉज प्राइमरली टॉट एट फोर्ट विलियम कॉलेज? तो वी हैव द आंसर इंडियन लैंग्वेज। 45 क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1948 एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू वुड डिस्पैच क्या होना चाहिए? वर्नाक्यूलर अकॉर्डिंग टू वुड डिस्पैच। चार्ल्स ग्रांट एडवोकेटेड क्रिटिसाइजिंग इंडियन विया इंग्लिश एजुकेशन। इट्स क्रिश्चियनाइजिंग है ना, नॉट क्रिटिसाइजिंग, इट इज क्रिश्चियनाइजिंग इंडियंस विया इंग्लिश एजुकेशन। क्रिश्चियनाइजिंग करना इंडियंस को किसके विया, किसके थ्रू? इंग्लिश एजुकेशन के थ्रू, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ग्रांट, ठीक है, इन्होंने एडवोकेट किया था। 48 आपका क्वेश्चन है, व्हेन वाज सीरमपोर कॉलेज एस्टैब्लिश? सीरमपोर कॉलेज आपका 1818 में एस्टैब्लिश हुआ है। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 49, द टर्म मैकॉलेज चिल्ड्रन रेफर्स टू? आंसर वी हैव इंग्लिश एजुकेशन इंडियंस, राइट। 50 क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश टू ट्रेन? आंसर एडमिनिस्ट्रेटर। अभी मैंने आपसे सिंपल क्वेश्चंस पूछे थे, मींस नॉट सिंपल एक्चुअली, दीज आर दी वन आंसर क्वेश्चन, मींस आपका सिंपल आपको एक क्वेश्चन है और स्टेटमेंट बेस्ड आपके टाइप के क्वेश्चन है। अभी मैं आपसे मैचिंग्स और जितने भी क्रोनोलॉजी बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं फ्रॉम दिस सेम यूनिट्स वी विल डिस्कस और प्रैक्टिस फॉर आवर अपकमिंग यूजीसी नेट इंग्लिश एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। वैसे तो मेरा ये जो वीडियो है दिस इज़ परफेक्ट फॉर दी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस है आर दी गेट फ्रॉम दी डिफरेंट रिसोर्सेज सो दैट यू कैन प्रैक्टिस वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, मैच दी फॉलोइंग राइटर्स विद देयर एसोसिएटेड मूवमेंट्स। अभी वी हैव द ऑप्शंस राजा राम मोहन रॉय, हेनरी डिरोजियो, बंकिम चंद्र चैटर्जी, माइकल मधुसूदन दत्त। तो वो कौन से मूवमेंट है दे एसोसिएटेड विद? तो ब्रह्मो समाज, यंग बंगाल मूवमेंट, रेनिसाज इन बंगाल, बंगाली लिटरेचर, रोमांटिसिज्म इन बंगाली लिटरेचर। तो आंसर वी हैव गाइज ए आपका एसोसिएटेड है, राजा राम मोहन रॉय आपके ब्रह्मो समाज से एसोसिएटेड है, और हेनरी डिरोजियो आपके यंग बंगाल मूवमेंट से एसोसिएटेड है, और आपके बंकिम चंद्र चैटर्जी रेनिसा इन बंगाल लिटरेचर से, एंड गाइज माइकल मधुसूदन दत्त आपकी रोमांटिसिज्म इन बंगाली लिटरेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको एग्जामिनर क्वेश्चंस जस्ट लाइक इन सेम मैनर आपको क्वेश्चन मिलते हैं, सो प्लीज़ इनको अवॉइड मत कीजिएगा। यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दी PYQs जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, मैच दी फॉलोइंग एजुकेशनल रिफॉर्म्स विद दियर प्रोपोनेंट्स। ठीक है, तो लिस्ट फर्स्ट वी हैव रिफॉर्म और प्रोपोनेंट्स दे रखे हैं, जैसे चार्ल्स एक्ट ऑफ 1813, वुड डिस्पैच 1854, मैकॉलेज मिनट 1835, हंटर कमीशन 1882। सो हियर आर प्रोपोनेंट्स। सो आपके चार्ल्स एक्ट जो है 1813 ये एसोसिएटेड है, इसके प्रोपोनेंट है लॉर्ड विलियम बेनेटिक, राइट। एंड वुड डिस्पैच जो 1854 में, इसके प्रोपोनेंट्स हैं हमारे सर चार्ल्स वुड, एंड मैकॉले का इसके लिए लॉर्ड मैकॉले हैं, ठीक है, 1835 वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, और हंटर कमीशन के लिए W हंटर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड वी हैव, मैच दी फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस विद देयर फाउंडर्स। अब यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशन है एंड यहाँ पे इनके फाउंडर्स हैं, जैसे हिंदू कॉलेज कलकत्ता एसोसिएटेड है आपके राजा राम मोहन रॉय के साथ, एंड फोर्ट विलियम कॉलेज एसोसिएटेड है आपके लॉर्ड वेल्सले के साथ, एंड संस्कृत कॉलेज कलकत्ता आपके विलियम
कैरी के साथ एसोसिएटेड है एंड प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता आपके लॉर्ड बेनेडिक्ट के साथ एसोसिएटेड है, राइट। नेक्स्ट अगेन यू विल हैव टू मैच द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स विद देयर ऑथर्स लाइक राजमोहन्स वाइफ आनंद मठ एंड मेघनाथ वध काव्य एंड स्लेन सोल्जर, राइट। मेघनाथ वध है ये, ओके, उनका काव्य है। सो हियर आर द ऑथर्स लाइक जो आपकी राजमोहन्स वाइफ है, एसोसिएटेड है इनका तौरूदत्त से। राजमोहन्स वाइफ, नो सॉरी फ्रेंड्स, राजमोहन्स वाइफ तो आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चैटर्जी के साथ एसोसिएटेड है, 1864 है ना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट इंडियन नॉवल रिटन इन इंग्लिश कंसिडर किया जाता है। सो हियर इज द ऑप्शन रॉन्ग। आनंद मठ आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के साथ एसोसिएटेड है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू मी आनंद मठ एंड राजमोहन्स वाइफ बोथ आर एसोसिएटेड है आपके बंकिम चंद्र चैटर्जी, राइट। एंड दीज टू, और मुझे इसके ऑप्शंस में थोड़ा सा, और ये मेघनाथ काव्य जो है आपका, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जो आपसे एग्जाम में अगेन एंड अगेन रिपीट होता है। एंड दिस वॉज रिटन बाय माइकल मधुसूदन दत्त। मेघनाथ काव्य माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा लिखा गया है और आई थिंक ये दैट वॉज पब्लिश 1861 और बंगाली लैंग्वेज में इसको लिखा गया था मेघनाथ वध काव्य को, ठीक है। एंड इसमें फ्रेंड्स मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये आपका रॉन्ग है। सो चलिए लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स विद दियर मेन ऑब्जेक्टिव्स। चार्ट यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और इनके ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, जैसे कि चार्टर एक्ट 1813, वुड डिस्पैच 1854 में कॉलेज मिनट, हंटर कमीशन। अभी क्या था इसका, ठीक है। तो जो आपका चार्टर एक्ट था दैट वाज, इसका जो ऑब्जेक्टिव था अलाउ करना फंड्स फॉर एजुकेशन के लिए। एंड जो वुड डिस्पैच है इसमें क्या था, एस्टेब्लिशमेंट करना यूनिवर्सिटीज़ को, और मैकॉलेज मिनट में प्रमोट करना इंग्लिश एजुकेशन को। एंड हंटर कमीशन था जिसमें आपको इम्प्रूव करना था किसको, प्राइमरी एजुकेशन को। सो दीज आर दी objectives of documents that asked in this question, okay। सो फ्रेंड्स आपको हेल्प मिले इसलिए मैंने कुछ आपको इस पैटर्न में PYQs फ्रॉम द इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया मैंने इस फॉर्मेट में आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। लेट्स सी who authored the minute on Indian education 1835? Answer we have T.B. Macaulay. The Wood Dispatch 1854 is known as Magna Carta Indian Education. The Charter Act of 1813 allow Christian missionary education. Who demanded English education in India during early 19th century? Raja Ram Mohan Roy. In which year was the Hindu College जिसे आप बाद में प्रेसिडेंसी बोलते हैं 1817 में आ रहा है, ठीक है। ये आपका क्विक रिवीजन में हेल्प करेगा। जैसे 3 यूनिवर्सिटीज़ कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास वर फाउंडेड 1857। हु फाउंडेड कलकत्ता, मद्रास, वॉरेन हेस्टिंग्स। संस्कृत कॉलेज इन बनारस वॉज फाउंडेड इन 1791। हु रोट राजमोहन्स वाइफ, बंकिम चंद्र चैटर्जी। हु स्टैब्लिश फोर्ट विलियम कॉलेज, लॉर्ड वेल्सले। Fort William College was founded in 1800. Which act allow missionaries to educated Indians? Charter Act 1813, राइट, अलो करता है मिशनरीज को कि एडुकेट करें इंडियंस को। हिंदू कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश इन विच सिटी, कलकत्ता में। और फर्स्ट इंग्लिश स्कूल फॉर इंडियंस ओपन कहाँ पे ओपन हुआ था, कलकत्ता में। मैं कॉलेज गुड जो गोल था वॉज टू क्रिएट, क्या गोल था उनका, क्लर्क लॉयल टू ब्रिटिश। हु प्रमोटेड वेस्टर्न साइंस विया इंग्लिश एजुकेशन, ऑफकोर्स राजा राम मोहन रॉय। हु सेड इंडियन इज ब्लड, लेकिन इंग्लिश इन टेस्ट, टी.बी. मैकॉले। फर्स्ट मेजर इंडियन पोइट इन इंग्लिश हमारा हेनरी डेरोजियो है। English formally introduced as medium of instruction 1835. Foundation of modern Indian education is associated with Lord Benedict. Who supported English education for modernization? Raja Ram Mohan Roy. Which college trained translator and clerks? Fort William College. Which documents led to Calcutta University's founding? Wood Dispatch. कलकत्ता यूनिवर्सिटी इज मॉडल्ड ऑन विच यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन पर मॉडल्ड थी आपकी जो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता थी। फादर ऑफ इंडियन रेनेसा वी हैव राजा राम मोहन रॉय। हु सपोर्टेड ओरिएंटल लैंग्वेज, ओरिएंटल जो लर्निंग थी उसको किसने सपोर्ट किया, ओरिएंटलिस्ट ने। एंड हु प्रमोट ओरिएंटलिज्म इन इंडिया, विलियम जेम्स ने प्रमोट किया ओरिएंटलिज्म को इंडिया में। फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जॉन्स। मैकॉले का जो मिनट था वो फेवर्ड था, क्या था, इंग्लिश मीडियम हायर एजुकेशन। गवर्नर जनरल ड्यूरिंग मैकॉलेज मिनट कौन थे, लॉर्ड बेनेडिक्ट। विच कॉलेज रीनेम्ड प्रेसिडेंसी कॉलेज इन 1855, हिंदू कॉलेज ऑफ कोर्स। राजमोहन रॉय फाउंडेड ब्रह्मो समाज फाउंड किया था। अर्ली इंग्लिश एजुकेशन वॉज लिमिटेड टू एरिस्टोक्रेट्स पर। एंड हु एंडेड ओरिएंटल,
पैट्रोनेज को किसने एंड किया? ऑफकोर्स लॉर्ड बेनेटिक ने. विच डॉक्यूमेंट एंडेड द एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी? मैकॉलेज मिनट 1835. फर्स्ट इंडियन पोइट टू राइट इन इंग्लिश? हेनरी डिरोजियो. वुड डिस्पैच emphasize higher education? Who argued English needed for modernization? Raja Ram Mohan Roy. Anglicist versus Orientalist was about medium of education. Next we have Macaulay's minute preferred English. Derozio associated with Young Bengal movement. Young Bengal movement क्या promote करा था? Rationalism and modernism. Derozio taught at Hindu College. राज मोहन रॉय पेटिशन फॉर इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, कब उन्होंने पेटिशन किया था? 1823 में. ओरिएंटलिस्ट प्रेफर्ड एजुकेशन इन संस्कृत एंड पर्सियन. एंग्लिसिस्ट सपोर्टेड एजुकेशन इन इंग्लिश. Who advocated vernacular education later against English imposition? Of course, Mahatma Gandhi. Who called for national education in vernacular languages? Rabindranath Tagore. Who criticized Macaulay's minute for destroying native culture? Mahatma Gandhi. First female Indian poet writing in English? तौरू दत्त. सो दीज आर द क्वेश्चन. आपके क्विक रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करने वाला है. दिस इज इनफ इन टुडेज ऑफ माई वीडियो. बाय माई नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगेन लिस्ट लेकर आऊँगी इंपॉर्टेंट वर्क्स की फ्रॉम अफ्रीकन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट नॉवेल्स आ रही हैं, दोज आर फ्रिक्वेंटली अपीयर्ड इन योर एग्जामिनेशन. उसका मैंने एक सेपरेट लिस्ट प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए. वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट ऑफ माई वीडियो. इतने आपको इस पर्टिकुलर वीडियो को प्रैक्टिस करना है एंड शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ. फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय.